Assalamu alaikum students. Hope you are all in good health. So today's topic is generally related to the urban information system UIS. Now we will do second part. Firstly we have done GIS. Now today our lecture is based on statistical package for the social sciences SPSS. ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. It can play a significant role in urban information system UIS by providing tool for data analysis, interpretation and visualization. GIS और SPSS का डिफरेंस ये है कि GIS हमें हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिजिटली, और यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है GIS से रेलिवेंट कि SPSS हमें डाटा एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में और विजुअलाइजेशन में हेल्प आउट करता है. अब हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह से ये हमें सर्वे के अंदर हेल्प आउट करता है, मॉडलिंग में हेल्प आउट करता है और किस तरह हमें स्टेटिस्टिकल डाटा बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करता है. डाटा एनालिसिस बेसिकली इट इज़ अ इनटेकन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज डाटा सेट्स रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज़ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. डेमोग्राफी क्या है कि जो उसका स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का, डेमोग्राफी. SPSS कैन हेल्प एनालिसिस दिस डाटा टू अनकंसर्न with the data to trends and patterns. मिसाल के तौर पे urban planners can use SPS to analyze the population growth data in different neighborhood to inform future development plans. यानी अर्बन प्लानर्स क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट करके हमें बता सकते हैं, एनालाइज करके कि किसी इलाके की पॉपुलेशन कितनी है और आने वाले 5 सालों में 10 सालों में वहाँ के नेबरहुड्स में कितनी आबादी होगी, ताकि उस हिसाब से हम देखें कि हमारे पास कितने सरप्लस रिसोर्सेज हैं और हम उन्हें किस तरह वेल डिफाइंड तरीके से इम्प्रूव करके यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए. सेकेंड, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग. It allows for advanced statistical modeling, which can be crucial in urban studies. Techniques such as regression analysis. Regression analysis basically use करते हैं statistical modeling के दौरान. It can be used and it is very crucial in urban studies. Techniques such as regression analysis can be applied to understand relationship between variables. For example, planners might use regression to analyze the how transportation accessibility impact property values in urban area. Third is survey analysis. Urban information system UIS like SPSS, it often rely on surveys to gather data from residents about their needs and performance और their preferences. डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं घर घर जाके, डोर टू डोर जाके लोगों से पूछने के लिए कि उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं और किस चीज़ की उन्हें नीड है. SPSS can be used to analyze survey results, identifying key factors that influence public opinions on urban policies and services. This can help city efficiently or officially make determined or data-driven decisions to make it developmental city और development urban area. नेक्स्ट, स्पेशल एनालिसिस के अंदर भी हेल्प आउट करता है ये कि स्पेशल एनालिसिस किस तरह की जाती है इसकी. It helps SPS to primarily a statistical road. It can be integrated with geographical information system. ये GIS के रिलेट करता है स्पेशल एनालिसिस. स्पेशल एनालिसिस GIS में भी थी और यहाँ पे भी SPSS में भी है. ये इन दोनों में कॉमन चीज़ है. By combining GIS data with SPSS, urban planners can analyze spatial patterns such as crime rates in relation to inform crime prevention strategies. Visualization. SPSS provides main graphical tools to visualize data, which is essential for presenting findings for stakeholders. Urban planners can create clients and charts and also graphs to illustrate trends in urban development, population trends, dignity or resource allocation, making complex data more accessible. It also helps in decision support. How? By analyzing historical data and forecasting future trends. SPSS can support driven making in urban planning. For example, it can help predict an impact of new policies in traffic congestion in public health outcomes. यानी वो एरियाज़ जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है कि हम देखें वहाँ पे लोगों की हेल्थ किस तरह इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसके नतीजे पे फिर हम जो है वो बेहतर प्लानिंग करें. Allowing planners to make informed choices. Example,
एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या एग्जांपल है एसपीएसएस और जीआईएस को यूज़ करते हैं अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो अंडर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. Urban planners can use SPSS to analyze data from cities like Karachi, Lahore regarding housing scheme, transportation, and public services. For example, if a study is conducted in the impact of public transport improvement on community times, then SPSS can analyze survey data from communicators to determine the changes, load, and significant improvements in travel efficiency. सो इसके साथ ही एक टॉपिक है अर्बन हीट आइलैंड, इसको भी देखेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है. अर्बन एरिया टेम्परेचर, अगर हम टॉपिक को ही देखें अर्बन हीट आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, ठीक है, वो एक अलहदा टुकड़ा, ठीक है, अलहदा हिस्सा. आइलैंड कोई भी हो सकता है, ग्रीनलैंड भी हो सकती है और आइसलैंड भी हो सकती है, ठीक है, यानी एक मुख्तसर सा हिस्सा जो किसी वजह से सिग्निफिकेंट है. अगर हम आइसलैंड कहेंगे तो वो बर्फ़ की वजह से है, ठीक है, ग्रीनलैंड है तो ग्रीनरी की वजह से है. कोई भी ऐसा ज़मीन का पार्टिकुलर हिस्सा, पार्टिकुलर टुकड़ा जो किसी बात की वजह से मशहूर है. अब यहाँ पे हम बात जो है वो यूज़ करें एनालॉगी की तौर पे, एनालॉगी टर्म अर्बन हीट आइलैंड, कि किस तरह शहरों के अंदर हीट जो है वो बढ़ती जा रही है, इसके क्या क्या रीजंस हैं और किस तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ को काम करना चाहिए. डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर एजेंसीज़ हैं जिन्हें कॉमनली बोला जाता है ईपीए, बाकी जितनी भी फिर हैं वो प्रोविजनली जो है डिफरेंट हैं ईपीए एजेंसीज़. अब हम देखेंगे इसके रीजंस क्या हैं और फिर इसके क्या वो सारे सबब हैं जिसकी वजह से हम दिन ब दिन जो है वो हीट की तरफ जाते जा रहे हैं और फिर आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या. अर्बन एरिया टेम्परेचर get increased at least 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इट्स रूरल सराउंडिंग, यानी जो रूरल एरिया हैं उसकी निस्बत शहर के इलाके, शहरी इलाके का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम 1 जून का कोई दिन लगाएं, 12 जून है, ठीक है, तो अगर गर्मी पड़ रही है, सूरज तो इक्वली पड़ रहा है ना हर जगह पे, गांव में भी और शहर में भी, लेकिन क्या फॉर एग्जांपल अगर गांव में टेम्परेचर उस दिन 42 है तो वहाँ पे शहर में उसी दिन ही क्या होगा, 45 होगा टेम्परेचर, ठीक है. तो ये क्यों है, क्योंकि रूरल सराउंडिंग से मुख्तलिफ है शहर की सराउंडिंग. जितनी फैक्ट्रियाँ हैं या फिर ट्रैफिक ज़्यादा है वो सारी कहाँ पे होती है, अर्बन एरियाज़ के अंदर, इसलिए वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है. फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ईपीए, वो बताती है कि किस किस तरह जो है वो उसके क्या क्या कोजेज़ हैं, क्या क्या ख़तरात हैं और फिर किस किस तरह उससे हम निपट सकते हैं. देयर आर डिफरेंट कोजेज़ ऑफ हीट इंक्रीजिंग. Built up area increase, then green area reduce and cooling effect reduces. Population density increase and energy consumption increase, then heat also increase. Appliances, transport industry, manufacturing industries. Aerodynamics effect of buildings. एरोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स क्या है कि सूरज की रोशनी जो है वो वापस फिर नहीं जाती, स्पेस नैरो होती है और फिर कंट्रैक्शन जो है मटेरियल. जैसे शहरों में अगर हम देखें तो तंग तंग गलियाँ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो आती है वो बिल्डिंग के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और फिर उसे बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलती और हीट जो है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाती है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस तरह का लगा होता है कि जिसकी वजह से देहात की निस्बत में अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा हीट जमा हो जाती है. इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं. पोल्यूशन इन्हांस हो जाती है, एनर्जी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, हीट इंक्रीज ड्यू टू पैथोजेनिक एक्टिविटीज़. पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या हैं कि जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं. एंथ्रोपोजेनिक क्या होती है, यहाँ पे एक डिफरेंस है एंथ्रोपोजेनिक और पैथोजेनिक. पैथोजेनिक ओबियसली जो पैथोजेंस इंक्रूज करते हैं और एंथ्रोपोजेनिक वो हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती हैं. हेल्थ इफेक्ट्स इसमें क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज इन कूलिंग इफेक्ट, प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या, महंगाई बढ़ जाएगी. बैलेंस शीट जो है वो ख़राब हो जाती है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट विड ऑल्सो इम्पेक्टेड. चेन ऑफ एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, एक्सपेंसिस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इवेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने जाते हैं लेस. ग्लोबल वार्मिंग जो है ऑटोमेटिकली वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. वाटर पोल्यूशन ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन ऑफ पैथोजेनिक एक्टिविटीज़. जाहिर है जब हीट थोड़ी सी फेवर, आपको पता है ना जितनी भी पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो वो ज़्यादा तब एक्टिव होते हैं जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी. फिर वे फारवर्ड क्या है, हम इससे किस तरह बचा जा सकते हैं. हम इससे सिर्फ तभी बच सकते हैं जब हम ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें, रिड्यूस करें कार्बन फुटप्रिंट को बाय वॉकिंग, ठीक है. अगर हमने साथ वाली दुकान पे भी जाना है तो आदमी क्या करते हैं, बाइक निकालते हैं लड़के और चले जाते हैं, ठीक है. तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम यूज़ करें ट्रांसपोर्ट का, ठीक है. वॉकिंग को जो है वो अपनी आदत बनाएं. यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट.
यूज़ ऑर्गेनिक फूड, हीट ऑप्टिमाइजेशन बिल्डिंग, इंसुलेटेड बिल्डिंग्स, होम गार्डनिंग करें। एक तो उससे क्या होगा, हमारी थोड़ी बचत होगी और हमारे घर की जो है वो हमें फ्रेश सब्ज़ी खाने को मिलेगी, और दूसरी जो है वो ग्रीनरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब हर बंदा जो है वो अपनी अपनी होम गार्डनिंग करेगा तो ग्रीनरी जो है वो इंक्रीज़ होगी, इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होगा। इकोनॉमिकली रिलायबल है, ग्रीन एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज़। ग्रीन रूफ टॉप्स, जो रूफ टॉप्स हैं उसे भी ग्रीन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जोनिंग विल बी स्ट्रीट, ग्रीन एरिया आर ऑल्सो लाइक पार्क्स, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं ग्रीन एरियाज़ पार्क के, वो जो हैं उसे भी ग्रीनरी हम करें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल चेंज करें, कंडक्शन, रिफ्लेक्शन एंड वो हम मटेरियल यूज़ करें कंस्ट्रक्शन के लिए जो कम हीट को जज़ब करे और ज़्यादा जो है उसको रिफ्लेक्ट करे। लाइट कलर यूज इन बिल्डिंग मटेरियल्स, जितना लाइट कलर होगा वो उतना जो है क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट का, उतना कम एब्जॉर्ब करता है हीट को। तो हमें पेंट वगैरह जब करवाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि लाइट कलर्स का पेंट करवाएं ताकि जो है हीट कम से कम एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पे जो है वो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है अर्बन हीट आइलैंड का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट हम वीडियो के साथ मिलेंगे जेंट्रिफिकेशन टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।